ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 19۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا ماسی کے بارے میں۔ ماسی کے پنوں میں بہت کچھ ایسے واقعے، بہت ایسے قصے تھے جس سے وابستہ حال میں سٹوری چل رہی ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا ماسی اور اب ہم چلتے ہیں واپس حال کی طرف اور دیکھتے ہیں آگے جا کے ماسی کی میں جو ہوئی غلطیاں، ماضی میں ہوئی جو غلط فہمیاں وہ حال میں جا کے کیا رخ لیں گی۔ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ حال آج نشہ اور ماہا کی یونی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ویلکم پارٹی تھی۔ ہلے گلے کی شوقین نشہ ان سب کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، مگر اس دفعہ اس کا نہ جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دل میں جو ٹینشن چل رہی تھی اس کے بعد اس کا بالکل من نہیں تھا۔ ماہا اپنی پیاری سی دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اس ٹینشن زدہ ماحول سے نکل کر کچھ دیر باہر جائے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ ماہا نے اس کے انکار کو دیکھ کر نشہ کے گھر والوں کو راضی کیا تھا تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے۔ ماہا کے بے حد اصرار پر وہ بجھے دل سے جانے کے لیے مان گئی تھی۔ ان کو چھوڑنے کی ذمہ داری عرید پر تھی۔ ماہا کا گھر ان کی حویلی کے بالکل سامنے تھا، اس لیے دونوں نے عرید کے ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا، جو ٹھیک 2 گھنٹوں بعد انہیں واپس لے کر جانے والا تھا۔ دونوں ایک ہی ڈیزائن کی بنی ہوئی سادہ سی میکسی میں ملبوس تھی، جس پر کہیں کہیں خوبصورت سے ستارے ٹانکے گئے تھے۔ نشہ نے لائٹ بلو جبکہ ماہا سی گرین رنگ کی میکسی سیب تن کیے ہوئے تھی۔ میکسی کے ہم رنگ حجاب دونوں نے سر پر ٹکا رکھے تھے اور میچنگ دوپٹہ کندھے پر سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ میں دونوں ہی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ عرید ابھی انہیں یونی چھوڑ کر گیا تھا اور انہیں 2 گھنٹے بعد واپس لے کر جانے کی ہدایت بھی کر چکا تھا، اور انہیں باقاعدہ ہدایت کر کے گیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک اسے فون کرے، جس پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یونی میں بے تحاشا رونق لگی ہوئی تھی۔ لڑکیاں رنگ برنگی تتلیاں بنی ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ لڑکے کہاں ان سے پیچھے رہ سکتے تھے، وہ بھی ایک سے ایک ڈریسنگ کی ایک دوسرے سے بہتر لگنے کی چاہ میں تھے۔ ہال میں چلتے تیز میوزک کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہال کی جانب بڑھی جہاں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں اپنی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس مل چکی تھی، انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ پارٹی میں ہلا گلا کو لوگوں کو دیکھ کر اپنی کلاس والوں سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ احان اور سالم گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ ہی ہال میں داخل ہوئے۔ کئی نظریں ایک ساتھ ان پر اٹھی تھی، کئی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی اور کئی نظروں میں حسد تھا۔ وہ دونوں اپنے اوپر پڑتی نظریں اچھے سے محسوس کر سکتے تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ سالم کی بے چین نگاہیں حال میں کسی کی تلاش میں اٹھی۔ جب ایک کونے میں کھڑی اس بے تحاشا حسن کی مورت کو دیکھ کر وہی ٹھہر گئی۔ تڑپتی دل پر جیسے نرم سی فوار پڑی تھی، چہرے پر خود بخود مسکراہٹ کھلی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا جو اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہوا جا رہا تھا۔ دل کی اس بغاوت پر حیران تھا، مگر یہ بغاوت اسے بری نہیں لگی تھی بلکہ بے تحاشا اچھی لگی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر آ کر اس کی نظریں ٹھہر سی جاتی تھی۔ اس کی گری آنکھوں کا وہ رفتہ رفتہ اسیر ہونے لگا تھا۔ سالم کیا کر رہا ہے؟ اپنا نہیں تو اس کی عزت کا ہی خیال کر لے۔ تو کب سے یہ دیدے پھاڑے اس کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی اگر تجھے نوٹ کر لے تو کیا سوچے گا؟ اپنی نظروں کو تھوڑا سا لگام دے۔ احان کب سے اس کی نظریں ماہا پر ٹکی محسوس کر رہا تھا، اس لیے اسے احساس دلانا ضروری سمجھا کہ وہ اکیلا یہاں نہیں تھا، یہاں بہت سے لوگ موجود تھے، اس لیے احتیاط بہتر تھی۔ اس نے محض ایک نظر ماہا کے ساتھ کھڑی نشوہ پر ڈالی تھی، جو بلو رنگ میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، بالکل اپنی اپنی سی۔ جو چیز اسے اس میں اچھی لگی تھی وہ تھا اس کے سر پر حجاب، سجا ہوا حجاب جو اسے پروقار دکھا رہا تھا۔ اس ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لیتا نظر ہٹا چکا تھا۔ ویسے تو جیسے جن کے ساتھ وہ معصوم سی گڑیا سجتی نہیں ہے، تو پل میں اس کی جان ہلکان کر دے گا۔
आहान उसके संजीदा चेहरे को देखता शरारत से बोला, जो उसकी बातों पर काफ़ी संजीदा हो गया था। उसकी अगली बात पर दांत पीस कर रह गया। आहान को लगा था कि शायद वो उसकी बातों का गुस्सा कर चुका है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने को बोला, अपने बारे में क्या ख्याल है? चल मैं चिन सही, पर तू तो दियो है, बेचारी का क्या हाल करेगा? सारिम अफसोस से बोलता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। उसे लगा जैसे सारिम उसके दिल तक रसाई हासिल कर चुका हो। जिस सच से वो अभी खुद भी इनकारी था, किसी दूसरे को उसकी बनक कैसे लगने दे सकता था। मेरी जिंदगी में कोई हास नहीं है जिसे कैद करने की जरूरत पड़े। वो उसके ज्यादा जैसे खुद को सफाई दे रहा था। उसे डर था कहीं वो उसके दिल का रास न पा ले। हाँ जानता हूँ, तू और किसी को अपने दिल में आने की इजाज़त दे नामुमकिन सी बात है। सारिम इसकी नेचर पर चोट करता हुआ बोला। आहान उसे घूर कर रह गया। सारिम ने उसकी गोरी पर बतीसी की नुमाइश की। नशवा का मोबाइल मुसलसल रिंग कर रहा था। उसने इर्द गिर्द बजते म्यूजिक के शोर को देखा। मोबाइल पर उरैद का नाम जगमगा रहा था। इतनी आवाज़ में बात नहीं हो सकती थी। माहा, उरैद भाई की कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। वो माहा के कान में बोलती हुई हाल से निकलती बाहर आ गई। उसका रुख पार्किंग की तरफ था। वहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने फ़ोन उठाते ही उस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, कोई मसला तो नहीं है? सब ठीक है ना? वो बहन की आवाज़ सुनता मोहब्बत से बोला। पहली बार वो यूं रात को किसी पार्टी में गई थी, इसलिए रात को उसकी फिक्र हो रही थी। जी भाई सब ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। वो उसकी फिक्र पर खुलकर मुस्कुराई थी। गाड़ी की आवाज़ पर उसने ज़रा सी नज़र उठाकर पीछे देखा, जहाँ उसके पीछे मौजूद कार से दो लड़के और लड़कियाँ कार से उतरते अंदर की तरफ बढ़ गए। उसने गौर ही नहीं किया कि उसके बाएं कंधे पर लटकता दुपट्टा उनकी कार के दरवाजे में आ चुका है। उसने औरत को खुदा हाफिज कहकर कॉल रखी। जैसे ही उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, उसे फौरन रुकना पड़ा। बाएं कंधे पर पड़ने वाले खिंचाव की वजह से उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां पीछे खड़ी गाड़ी में उसका दुपट्टा बुरी तरह फंस चुका था। कॉल सुनते सुनते वो उस तरफ आ गई थी, मगर अब उसका दिल एकदम से तन्हाई के ख्याल से कांपा। इर्द गिर्द कोई सी रूह मौजूद ना था। सबके सामने बहादुरी दिखाने वाली नशवा का दिल खौफ से फैलकर सुकड़ा। उसने दुपट्टे को खींचा, मगर वो बुरी तरह फंस चुका था। उसका दिल किया पूरी शिद्दत से दुपट्टा खींचे, मगर दुपट्टे का एक बड़ा हिस्सा कार के दरवाजे के अंदर आ चुका था। दुपट्टे के फटने के दर्द से उसने ज्यादा जोर भी ना दिया। कुछ कंधे पर सजा वो रेशमी दुपट्टा इतनी जल्दी फटने वाला हरगिज ना था। अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करें, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें। वो रोती हुई आसमान की तरफ देखती हुई बोली। मुंह से मुसलसल दुआओं का विर्द जारी था। एक तन्हाई का खौफ, दूसरा अपनी इज्जत उसे बेहद अजीज थी। आंखों से आंसू बखुद बेमोल होने लगे थे। तन्हाई का खौफ इस कदर हावी था, उसे इतना ख्याल भी ना आया कि फ़ोन करके माहा को ही बुला लेती। वो मुसलसल अल्लाह को पकारने में मसरूफ़ थी, जब बारीक कदमों की रमक उसे करीब आती हुई महसूस हुई। उसका दिल 200 की रफ्तार पकड़ चुका था। वो कब से दोस्तों में गिरा खड़ा था, जो एक पल भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। जब वो मिल जाते थे तो एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और आज तो मौका भी था और दस्तूर भी, बस इसलिए वो एक दूसरे के हत्थे चढ़े हुए थे। उनका ग्रुप एक साइड पर खड़ा था, इसके बावजूद वो सब में नुमायां हो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे पर फिक्रा कसते और उनके जन्नाती कहकहे हाल में गूंजते। उसकी नज़रें भटक भटक कर उस तरफ उठ रही थी जहां वो कुछ देर पहले खड़ी थी, मगर वो मुसलसल 10 मिनट से अपनी बेचैन निगाहें पूरे हाल में दोहरा रहा था, मगर वो होती तो नजर आती। अब वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करते, ज़रूरी कॉल का कहते बाहर की जानी पड़ा। यूनी का एक हिस्सा जहां भरपूर रोशनियों से जगमगा रहा था, वहीं बाकी हिस्सा तकरीबन सुनसान पड़ा था। तो उस तरफ उसने जाने की गलती हरगिज नहीं की थी। हॉल के बाहर आकर उसने चारों ओर निगाह दुराई थी, मगर वो उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दी। कुछ सोचकर उसने अपने कदम पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ाए, जहां किसी के बड़बड़ाने के साथ रोने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पार्किंग में पहुंचकर उसने उस बेवकूफ़ लड़की को देखा था, जो आंखें नीचे मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। चेहरा आंसुओं से तर था। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा यहाँ कोई नहीं है, फिर भी बेवकूफ़ों की तरह यही खड़ी हो। आहान को उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था। उसके रोने को मुकम्मल इग्नोर करता उसके अकेले यहाँ मौजूदगी पर वो गुस्से में आता उसे डबड़ चुका था।
लूडो खेल रही हूँ। नजर नहीं आता मेरा दुपट्टा कार में फंस गया है। उसके बेतुके सवाल पर वो भी सू सू करते उल्टा जवाब दे चुकी थी। उसकी यहाँ मौजूदगी पर कुछ हौसला हुआ था। किसकी गाड़ी है ये? वो गंभीर आवाज में एक कदम उसके नज़दीक आता हुआ बोला। मुझे नहीं पता, वो लाताल्लुकी का इजहार करते हुए बोली। वो महज इस बात में सर हिलाता पीछा हुआ। उसका इरादा फ़ोन करके सारिम को बुलाने का था। मुझे छोड़कर मत जाना मिस्टर बदतमीज़। उसके जाने का सोचकर ही वो खौफ से बोली थी। इतनी परेशानी में भी वो उसका मखसूस नाम लेना नहीं बोली थी। अहान उसे घूर कर रह गया। वाकई इस लड़की की ज़ुबान पर बंद बांधना नामुमकिन था। इतनी परेशानी में भी उसकी ज़ुबान जोहर दिखाने के पीछे न हटी थी। अपनी जल्दीबाजी पर वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। नशवा तन्हाई में और माहा के सामने उसे इसी नाम से पुकारती थी, इसीलिए बेदहानी में उसे इसी नाम से पुकार गई। इधर ही हूँ मिस पोटाखा। वो हिसाब बराबर करता हुआ उसके नज़दीक आया। उसने हाथ बढ़ाकर कार का हैंडल खोला जो हैरत अंगेज तौर पर खुल गया था, यानी कार लॉक नहीं थी। अहान को उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया था, जो रोने की बजाय एक बार दरवाज़ा खोलकर भी देख सकती थी। मगर यहाँ से रोने से फुर्सत मिलती तो वो कुछ सोचती। अपना दुपट्टा आज़ाद होते ही वो खुशी से खिलखिला उठी। अहान ने यह मंजर बड़ी गौर से देखा। जहाँ एक तरफ उसकी आंखों में आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ होंठों पर मचलती मुस्कुराहट थी। वो इस खूबसूरत मंजर का असीर हुआ था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो उसकी तरफ देखती हंसती हुई बोली। ये शायद उनकी पहली गुफ्तगू थी जो उन्होंने कुछ नॉर्मल तरीके से की थी, नहीं तो अक्सर जब भी सामने आते थे गोलाबारी ही करते थे। नशवा ने तशक्कर भरी नजरों से उसे देखा। वो जितना सोच रही थी उतना भी बुरा न था ये मिस्टर बदतमीज़। बंदा थोड़ी अकल ही इस्तेमाल कर लेता है। एक दफ़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर देख लेती। चलो इस बात को भी छोड़ो, ये फ़ोन हाथ में देखने के लिए पकड़ा है, किसी को कॉल करके नहीं बुला सकती थी। वाकई सही कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग कम ही होता है। वो इसकी बेवकूफ़ी पर चोट करता हुआ बोला। नशवा के सर पर लगी तालू बजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की? खुद होगे बेवकूफ़। वो नाक सकोर कर अपने टोन में वापस आती हुई बोली। वाकई वो कह तो सही रहा था, मगर वो नशवा ही क्या जो इतनी अपनी गलती मान ले। चलो अंदर, बेवकूफ़ लड़की अपने दोस्त के पास जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ खड़े होते ना देखूं। वो उसे अंदर जाने का इशारा करता हुआ बोला। नशा से घूरती पैर पटकती अंदर की तरफ बढ़ गई। अहान भी उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ गया। भाई कितनी बोरिंग सी पार्टी है, कुछ हल्ला गुल्ला ही हो जाए। क्यों अहान? सारे मुझसे देखकर बोला। हाँ अहान, एक गाना ही हो जाए, ज़रा माहौल ही बना दो। सारे दोस्त एक जुबान होकर बोले। अहान अहान अहान। सब ने एक आवाज़ होकर नारे लगाए। उनकी पुकार पर सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। सारे हॉल में उसके नाम के नारे गूंज उठे थे। अहान ने सारिम को एक ज़बरदस्त गोली से नवाजा। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने हार मानते हुए हाँ में सर हिलाया। अहान के साथ सारिम भी स्टेज की तरफ बढ़ा था। उसने हाथ में गिटार थाम रखा था। वो गा नहीं सकता था तो क्या हुआ, उसका साथ तो दे सकता था। सारिम ने अंगूठे से उसे ओके का निशान किया। अहान ने भी ओके का इशारा करते गाना शुरू किया। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ आ गया है मिस्टर अहान का गाना, जिसके बोल हैं कुछ यूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना गाना सिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, और आई थिंक सो मैं बहुत गंदा सा गाती हूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई, सो आई होप यू लाइक इट। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू होगा ना कभी अब जुदा। अहान की आवाज़ जैसे ही हाल में गूंजी, हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ उसकी मीठी आवाज़ 400 गूंज रही थी। अहान ने गाते हुए जैसे ही आंखें बंद की,
बंद पर्दों पर पूरे इस्तेहाक से नशवा का चेहरा लहराया। उसने बौखला कर आंखें खोली, मगर फिर मुस्कुराते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। जहाँ एक दफ़ा फिर उसका हसीन चेहरा लहराया, उस दफ़ा उसने आंखें नहीं खोली थी। नाम दिल रख दिया मैंने, तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ये मिस्टर बदतमीज इतना अच्छा गा भी लेता है, उसे देखकर तो नहीं लगता। नशवा माहा के कान में बड़बड़ाई। उसके हिसाब से तो वो बस लड़ने में ही तेज था, मगर उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर हैरानी हुई थी। तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ना भूल सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहाँ बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी चाहे सांसे ख़त्म, कम ना होगी ये वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। जैसे ही उसने गाना ख़त्म किया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रंग बिरंगी आवाज़ें उठ रही थी, सब उसे सराह रहे थे। हाँ जी, अहान ने तो बहुत प्यारा गाया होगा, इसीलिए सब उसे सराह रहे थे, लेकिन मैंने जैसा भी गाया दोस्तों बस गा दिया। आई नो गंदा सा गाया, बट फिर भी प्लीज़ प्लीज़ आप थोड़ा बहुत तो सराह ही सकते हैं मुझे, मतलब यानी थोड़ा बहुत तो इस चीज़ को सुन ही सकते हैं। चलिए बाकी हम चलते हैं नावल की तरफ। अहान ने आंखें खोलते ही एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो सताइश से उसे देख रही थी। उसके होंठ मुस्कुराहट में डले। नशवा ने दाद देती नज़रों से उसे देखा। वो उसकी आवाज़ से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी। मोहब्बत खामोशी से अपने पर फैलाने लगी थी, जाने एक होना उनके नसीब में था या नहीं। जी, तो कैसी लगी आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की एपिसोड तो दोस्तों काफ़ी मज़े की रही। आज हम